ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ यूट्यूब ਚੈਨਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ 4th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ MBD ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ 2 ਮੀਟਰ ਵਾਇਰ 2 ਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ L ਗਿਵਨ ਹੈ, L ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2 ਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਅ velocity ਗਿਵਨ ਹੈ, perpendicular to the magnetic field मतलब थानू B given है, EMF induced in it will be, so we have to find induced EMF। ठीक है, EMF कितनी है? सो साडे को बच्चे फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू BVL। सो B की वैल्यू थाडे को कितनी है? असी जस्ट वैल्यूज पुट करन लगे हाँ। E B की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू वेलोसिटी 1 मल्टीप्लाई बाय देन लेंथ कितनी है? 2 मीटर। सो डेसीमल हटाता इत्थे आ गया 10, 5 2 ज़ा 10, 2 दे नाल 2 कटे गया तो ई दी वैल्यू आ गई 1 वोल्ट। सो आंसर आ गया बच्चे C 1 वोल्ट। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ सोलेनाइड हैज़ 200 टर्न्स। एक सोलेनाइड आ जिहदियां 200 टर्न्स है ओवर अ लेंथ ऑफ 0.3 मीटर। इहदा मतलब सानू L गिवन और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर स्केयर। सो सानू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब E गिवन है। अराउंड इट्स सेंटर पार्ट अ कॉयल ऑफ 200 टर्न इज बाउंड। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਇਲ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਜਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ 300 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ N1 ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ N2। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਹੈ। ਇਫ ਐਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਟ ਆਫ 2 एम्पेयर इज़ रिवर्सड। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ 2 ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਕਰੰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇਤਾ, ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਲੇਨਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 2 ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 2 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲੱਸ ਫਾਈਨਲ 2 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ DI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? 4 एम्पेयर। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ। in time 0.2। so ਤੁਹਾਡਾ time given ਆ this is DI and this is DT। time ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ given ਆ 0.25 seconds। now we have to find induced EMF produced in a coil। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ coil ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਆ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਫॉर ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ? B ਦੀ ਵੈਲਿਊ। B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? μ0 NI। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਇੱਥੇ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਆ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? N2BA ਫਲਕਸ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ N2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ N2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ N2 SH ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ? μ0 NI विच इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सो A ठीक है जी, ये थोड़ा फाई आ गया। हुण असी इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला लगावांगे E इज इक्वल्स टू d⁵/dt। d/dt एस सच लिखिया रहन दिता। फाई की वैल्यू बच्चे असी आ पुट कर दी N2 जो आ सीगी सेम एस सच असी इत्थे इक्वेशन पुट कर दी। हुण ध्यान नाल बच्चे नेक्स्ट स्टैप बिल्कुल सिंपल आ, तुहाडी मर्जी, तुसी जिद्दां मर्जी लिख सकदे आ। तुसी सब तो पहला की है N2, तुसी लिख सकदे आ N2 दैन μ0 लिख दिता। N स्मॉल n आ इनू कैपिटल N च कन्वर्ट किया तो N1 डिवाइडेड बाय L। ठीक है, असी आर्टिकल दे विच आ चीज़ सॉल्व कर चुके हैं। स्मॉल n की वैल्यू होंगी कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, क्योंकि इतने नंबर ऑफ टर्नस असी फस्ट की गल कर रहे हैं तो N1 डिवाइडेड बाय L। करंट नू असी इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिता, आ गया DI/dt। ए दी जगह ते A लिखिया रहन दिता, ए दी जगह ते A लिखिया रहन दिता। नैक्सट स्टैप देख लो बच्चे, जिहड़ा मैं हाथ ना सॉल्व किया है N2 SH लिखिया, μ0 पहला लिख दिता SH लिखिया, N नू कन्वर्ट कर दिता N1/L1, I की जगह तो इनू ये मल्टीप्लाई कर दिता DI/dt। A आ रहा। इन्नी चीज़ हो गई बच्चे, क्लीयर आ? स्टैप क्लीयर हो गया। हुण तुहाडे कोल एक फॉर्मूला आ गया। हुण तुसीं सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनिया, होर कुछ नहीं करना। हुण ध्यान नाल देख लो बच्चे, μ0 की वैल्यू कितनी होंदी आ? 4 × 10⁻⁷। N1 सानू गिवन आ 2000, L की वैल्यू गिवन आ 0.3 मीटर, N2 की वैल्यू 300, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन 1.2 × 10⁻³ करंट थानू दस दिता कि वो रिवर्स हो गया, रिवर्स करके 2 + 2 कितना हो गया? 4। DT
करंट सानू सैकेंड टाइम सानू गिवन है 0.25 सैकेंड। हुण बच्चे सारी कैलकुलेशन नू तुसी सॉल्व कर लो। मैं इत्थे प्रॉपर सॉल्व नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी जा रही सी। सो क्योंकि कैलकुलेटर PSEB दे विच कैलकुलेटर अलाउड है, मैं भी कैलकुलेटर तो सॉल्व करके बच्चे डायरैक्ट लिख दिता। सो उन्होंने अगर वोल्ट दे विच आंसर पूछा तो इन्ना आएगा, अगर मिली वोल्ट दे विच पूछा तो इन्ना आएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप चैक कर लैंने कि तुहाडा आंसर की आ रहा है। सो देख लो बच्चे ऑप्शन नंबर बी साडी करैक्ट आ रही है 4.8 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। हुण इत्थे आ ना लगा दिओ क्योंकि इत्थे वोल्ट आ बच्चे, मिली वोल्ट नहीं आ। ठीक है, साडे दो आंसर आए, एक मिली वोल्ट दे विच, एक वोल्ट दे विच। सो वोल्ट वाला आंसर साडा बिल्कुल ठीक है। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अ कंडक्टर इज़ मूविंग इन अ मैगनैटिक फील्ड बी। असी किसी कंडक्टर नू मूव करवाया मैगनैटिक फील्ड बी दे अंदर, तो कहते इंड्यूस्ड करंट जी आई प्रोड्यूस हो रहा इफ मैगनैटिक फील्ड इज़ डबल। अगर मान लो असी जी मैगनैटिक फील्ड नू डबल कर दिए तो जो करंट आ वो किदां दा होएगा। देखो बच्चे इनू सॉल्व किदां करना, असी लिखांगे EMF इज इक्वल्स टू -d∅/dt। सानू पता जो फ्लक्स आ कि इक्वल होंदा BA। ठीक है, मैगनैटिक फील्ड इंटू एरिया। इत्थों सानू डायरैक्ट क्लीयर हो गया कि जोड़ा E आ बच्चे d∅ दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ या फिर E जोड़ा आ B दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ। इहदा मतलब जिद्दां ही तुसी E नू इनक्रीज़ करोगे तो थोड़ी मैगनैटिक फील्ड इनक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैगनैटिक फील्ड इनक्रीज़ कर रहे हैं तो थोड़ी EMF इनक्रीज़ हो जाएगी। सो असी इत्थे एक लाइन लिखी आ, इफ़ d∅ इज़ डबल्ड, बच्चे d∅ लिख लो चाहे B लिख लो। ठीक है, अगर तुसी मैगनैटिक फील्ड नू डबल कर दिया तो इंड्यूस्ड EMF इज़ ऑल्सो डबल, ये भी चीज़ डबल हो जाएगी। हुण EMF का मतलब की है वोल्टेज। ठीक है, असी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख दिता V इज इक्वल्स टू IR। आर थोड़े को की आ कॉन्सटेंट, इसका मतलब V इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब जिद्दां ही तुसी इंड्यूस्ड EMF नू डबल करोगे, आ बच्चे इंड्यूस्ड EMF आ, अगर इनू डबल करोगे तो करंट विल ऑल्सो डबल। सो आप ऑप्शन चैक कर लैंने आ। उन्होंने कहा कि अगर असी मैगनैटिक फील्ड, सो मैगनैटिक फील्ड डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ गया करंट दे। क्लीयर हो गया बच्चे, लॉजिक समझ लग गया क्योंकि उत्थे इंड्यूस्ड EMF लग रहा है, E इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। सो EMF जोड़ा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ B दे, अगर असी B नू इनक्रीज़ करांगे तो EMF इनक्रीज़ हो जाएगा। अगर EMF इनक्रीज़ हो रहा तो वोल्टेज इनक्रीज़ हो जाएगी। अगर वोल्टेज इनक्रीज़ हो रहा तो करंट इज़ ऑल्सो इनक्रीज़। डायरैक्ट इन्नी चीज़ क्लीयर होगी। अगर मैगनैटिक फील्ड डबल करांगे तो करंट भी की हो जाएगा डबल। सो ऑप्शन चैक करते हैं। ऑप्शन देख लो, नंबर 1 रिमेन्स द सेम, B हाफ्ड, B 4 टाइम्स, B डबल्ड, तो थोड़ा करंट की हो जाएगा डबल। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। 15th बच्चे क्लीयर हो गया। सो अगर MCQs क्लीयरली समझ लग रहे बच्चे वीडियो नू लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल ते फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। बच्चे क्वेश्चन नंबर 17th देखो, टू कॉइल्स have a mutual induction 0.05 Henry. Mutual induction means कि सानू M दी वैल्यू गिवन है। The current changes in the first coil according to the equation I is equals to I naught sin omega t. So this is the current, ਉਹ वाला current ਜਿਹੜਾ कि coil च change हो रहा है। Next सानू इत्थे I दी वैल्यू गिवन है, ओमेगा दी वैल्यू ਵਿੱਚ गिवन है 100 pi radian per second। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन अ सैकेंडरी कोयल, तुसी सैकेंडरी कोयल दे विच मैक्सिमम EMF फाइंड आउट करना। सो E दी वैल्यू किहदी इक्वल आएगी mdi/dt। ठीक है जी, M दी वैल्यू साडे को कितनी गिवन है 0.05 मल्टीप्लाई। हुण देखो d/dt नू एस सच लिख दिता, I दी वैल्यू साडे को कितनी आ I नॉट साइन ओमेगा टी। सो असी पुट कर दिता I नॉट साइन ओमेगा टी। सो इनू बच्चे डेरीवेटिव इहदा किद्दां लवांगे, सो बच्चे इस तरीके नाल लिख लिया E इज इक्वल्स टू mdi/dt। d/dt नू एस एच लिख दिता, I दी वैल्यू की पुट कर दी I नॉट साइन ओमेगा टी। हुण बच्चे आपां डेरीवेटिव लैन लगे हां। डेरीवेटिव ऑलवेज उहदा ही लईदा जिहदा वेरीएबल पिया होवे। इत्थे कौन आ dt, इत्थे मतलब t। I नॉट की हो जाएगा कॉन्सटेंट। सो I नॉट असी की कर दिता बाहर निकालता, I नॉट एस सच बाहर निकाल दिता। साइन ओमेगा टी दा डेरीवेटिव हुंदा बच्चे कॉस ओमेगा टी। सो डेरीवेटिव साइन थीटा, शायद मैथ्स वाले बच्चों को पता होएगा, साइन थीटा का डेरीवेटिव की हुंदा है कॉस थीटा। थीटा की जगह इत्थे की है ओमेगा टी, सो असी लिख दिता ओमेगा टी। टी बच्चे वेरीएबल है, ओमेगा एक एक्सट्रा टर्म आ, सो मल्टीप्लाई कर देना असी सेम टर्म दे नाल। सो इत्थे आ गया ओमेगा। बच्चे डेरीवेटिव दा रूल आ, जस्ट आपां डेरीवेटिव सॉल्व कीता। क्लीयर होगी। नाउ पुट द वैल्यूज, M दी वैल्यू 0.05 पुट कर दी,
आई नॉट बार निकाल दिता, आ लिख दिता cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। हुण वैल्यूज़ पुट कीते बच्चे, आई दी वैल्यू सानू कितनी गिवन है 10। बच्चे उन्होंने क्या मैक्सीमम कंडीशन दी है मैक्सीमम। सो मैक्सीमम कदों होएगा जो इसकी वैल्यू मैक्सीमम होएगी। इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती या फिर 1। यदा मतलब मैक्सीमम कदों होएगी जो असीं इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। सो असीं इसकी वैल्यू पुट कर दी 1। ओमेगा की वैल्यू सानू गिवन है 100 पाई। सो सारी इक्वेशन को सॉल्व किया, साडे को आंसर आ गया 5 पाई। सो ऑप्शन चैक कर लैंने। सो बच्चे फर्स्ट आ 2 पाई, 5 पाई, पाई एंड 4 पाई। सो साडा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 5 पाई। क्लीयर हो रहा बच्चे। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे 33 जोड़ा क्वेश्चन नंबर देखो। वन कंडक्टिंग यू ट्यूब कैन स्लाइड इनसाइड अनदर एज अ शोन इन फिगर मेंटेन्स इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द tubes. The magnetic field B is perpendicular to the plane of the figure if each tube move towards other at a constant speed v. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੱਚੇ velocities ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ velocity ਆ v ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਸ ਜਾ ਰਹੀ that is also v। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ v ਮਾਈਨਸ v ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2v। ठीक है, v प्लस v 2v, या तुसी डायरैक्ट भी लिख सकते हैं कि दो वेलोसिटीज़ आ दैट इज़ 2v। ठीक है, तुहानू वेलोसिटी क्लीयर होगी। उन्होंने हुण की क्या आया इंड्यूस्ड इन द सर्किट इन टर्म्स BLV। सो सानू पता बच्चे इंड्यूस्ड EMF E के इक्वल होंदी है BLV। हुण सानू पता असीं हुणे हुणे कह के हटे कि दो वेलोसिटीज़ आ। सो दो वेलोसिटीज़ आ मतलब BLV 2v। सो आंसर आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 2BLV। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बुक विच गलत है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए लिखी है, 0 नहीं होएगा क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रही वेलोसिटीज़, ऐड हो जाएगियाँ वेलोसिटीज़। 2 + 2 2v हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 2BLV। क्लियर हो गया। सो सेकेंड इज़ द राइट आंसर। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34th क्वेश्चन है। टू डिफरेंट लूप्स आर कॉन्सेंट्रिक एंड लाइज इन अ सेम प्लेन। दो साडे को लूप्स आ, मान लो एक आ लूप आ, ये उपर ही असी एक होर लूप रख दी कॉन्सेंट्रिक मतलब आ रही। मान लो आ एक लूप है, दूसरी लूप आ मान लो। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम आ, एक ही प्लेन दे विच आ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे विचकार पई आ। द करंट इन द अपर लूप इज़ अ क्लॉकवाइज। पहले दे विच किदां दी आ क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच जिहड़ी आ तुहाडा करंट आ वो मूव कर रहा है इनक्रीजिंग विद टाइम। जिदा जिदा टाइम बीत रहा जिहड़ा तुहाडा करंट दी अमाउंट आ दैट इज़ ऑल्सो इनक्रीज। मान लो पहला 2 एम्पेयर सी, फिर 3 एम्पेयर हो गया, 4 एम्पेयर हो गया, मतलब विद टाइम जिहड़ा तुहाडा करंट आ इनक्रीज हो रहा। द इंड्यूस्ड करंट इन द इनर कॉयल दैन जिहड़ी ते नीचे वाली कॉयल आ। सो मैं थोड़ी वड्डी बना दी ताकि तुहानू कन्फ्यूजन ना होवे। अदरवाइज ये जिहड़ी नीचे वाली इनर कॉयल आ बच्चे उत्थे उन्होंने पुछया करंट किदां दा होएगा। सो सारियां कॉयल्स दे विच बच्चे सेम डायरैक्शन दे विच करंट हुंदा आ क्लॉकवाइज। हुण क्वेश्चन उठदा आ क्लॉकवाइज आएगा कि काउंटर क्लॉकवाइज आएगा। सो काउंटर क्लॉकवाइज आंसर आएगा, इसका रीजन समझ लो। सो ई के इक्वल हुंदा बच्चे -d∅/dt। ठीक है जी। सो ई इंड्यूस्ड EMF के इक्वल हुंदा IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। सो E इज इक्वल्स टू IR इज इक्वल्स टू -d∅/dt। इत्थों बच्चे आई का आंसर निकाल लो, आर उधर चला जाएगा। सो आई का आंसर कितना आ गया -1/r d∅/dt। इसका मतलब माइनस के विच आंसर आ रहा। माइनस का मतलब की आ काउंटर कर रहा उन्होंने। ठीक है। सो आंसर तुहाडा सी दे विच आ जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। बच्चे तुसीं अपनी कॉपी के उपर रिटन दे विच एक नोट लिख लेना ताकि फाइनल पेपर के लिए याद रहे। तुसीं वर्डिंग अपनी कॉपी या अपनी बुक के उपर लिख लो। लेंस लॉ स्टेट्स व्हेन EMF इज जनरेटेड बाय चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू Faraday's law then direction of induced EMF such that it opposes the cause of produce। it oppose करदा है which it is प्रोड्यूस। हैंस इंड्यूस्ड करंट जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होएगा इनर लूप के अंदर उन्होंने असी की बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरैक्शन बोलते हैं। क्लीयर हो गया बच्चे। सी ऑप्शन की आएगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरैक्शन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 46 देखो, कहते यू हैव 2 कॉपर केबल्स ऑफ इक्वल लेंथ फॉर क्रॉस कैरिंग करंट। साडे को 2 केबल्स है, मान लो एक मेरे को केबल आ, एक तुहाडे को केबल है। वन ऑफ दैम हैज़ अ सिंगल वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ए। उन्हां विचों एक वायर का जोड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ए आ एंड अदर हैज़ 10 वायर्स ऑफ क्रॉस सैक्शन ए ओवर 10 ईच।
ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ A ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ A, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ A/10 ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਵਾਇਰ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ A ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ A/10 ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਦੇਅਰ ਸੁਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ AC ਐਂਡ DC। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AC ਜਾਂ DC ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ AC ਜਾਂ ਫਿਰ DC ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਲੋਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, 10 ਤੋਂ 12 ਇੱਦਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ DC ਕਰੰਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ AC ਕਰੰਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਟਸ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਲਟੀਪਲ। ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੰਗਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਚਾਹੇ AC ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ DC, ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਡ ਫॉर DC। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਈਦਰ ਫॉर DC ਓਨਲੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਫॉर AC। ਜੋ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ DC ਆ ਚਾਹੇ AC ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ। C ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖਿਆ, D ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ। 56 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਨ ਦ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਾਲੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ B ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ। ਬੋਥ ਦ ਕੋਇਲਸ ਆਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ, ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।